Welcome dear students to a quick revision on classical and non-classical carbocations जो हम पढ़ चुके हैं. Classical carbocations where the positive charge is localized on a carbon atom and it is stabilized by resonance either by means of double or triple bonds present on the allylic position, or by hyperconjugation, or by inductive effect, or maybe by the presence of lone pair of electrons of the vicinity, that is the alpha carbon atom. That is presence of a heteroatom on the alpha carbon atom. On the other hand, non-classical carbocations are those which are a 3-center 2-electron system, which are rapidly resonating structures due to neighboring group participation, either facilitated by the presence of pi electrons or by sigma bond. These structures therefore bring more stability because these neighboring groups facilitate the stability by creating these different resonating forms. So let us study a few examples of both classical and non-classical carbocations. The important examples of non-classical carbocations are the nor-bornyl carbocation, the nor-bornyl carbocation, and the cyclopropyl methyl carbocation, which we will see in these coming examples. ये है क्लासिकल कार्बोकेटायन. देखिए कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड हाउ by means of hyperconjugation or no bond resonance. On the other hand, here in the vicinity of carbon is this heteroatom and the lone pair of electrons stabilize this positive charge. Similarly, there might be the presence of these groups, alkyl groups, which stabilize this carbocation, or maybe the presence of a double bond in the allylic position of this carbocation. यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा हो. यह है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन. आप देख रहे हैं 7 नॉन बॉर्निनाइल, बिकॉज डबल बॉन्ड है ना, बॉर्नाइल नहीं, बॉर्निनाइल कैटायन है. ये देखिए ब्रिज हेड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. और क्या होगा ये पॉजिटिव चार्ज, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इधर प्रेजेंट है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन, कभी ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो इससे जुड़ जाएंगे. तो कहने का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इस कार्बन के कम करेंगे तो हमको मिल जाएगा इस किस्म का रेजोनेटिंग फॉर्म. हेंस इट सीम्स एज दो द वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन हैज इंक्रीज्ड. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 बॉन्ड तो हैं और ये 5वां सा लग रहा है. सिमिलर इज द केस इन दिस. सो इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपर वैलेंट सिस्टम. तो स्टेबिलाईजेशन है इस तरह थ्रू दीज वेरियस रेजोनेटिंग फॉर्म्स. एक जगह लोकलाइज नहीं है, अनलाइक क्लासिकल कार्बोकेटायन जहां एक जगह लोकलाइज्ड है. और स्टेबिलाईजेशन जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, either by hyperconjugation or by the presence of a lone pair of electron in the vicinity or by the presence of pi bonds in the allylic position. लेकिन यहाँ जो ये pi bond present है, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, और अगर यहाँ प्रेजेंट होता वो allylic position कहलाती, लेकिन इस कार्बन को छोड़कर इधर प्रेजेंट है, it is known as a homoallylic cation. Hence, this is a non-classical carbocation. The evidence for the existence of non-classical carbocation, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है. ये जो रिएक्शन होता है इस नॉर-बॉर्निलाइल सिस्टम पे 7 1 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 7th पोजिशन. तो ये जब ग्रुप निकलेगा, इसको निकलने में कौन फैसिलिटेट करेगा, ये पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड कैसा प्रेजेंट है, इसके एंटी पोजिशन में, एंटी. So hence this reaction is 10 to the power of 11 times faster than in the case of B, where there is no double bond present. And in this case again, क्योंकि इसमें
ये इधर से निकलेगा, सिमिल्टेनियसली इधर अटैक करेगा। एक SN2 डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लग रहा है एक SN2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और इसके बाद क्या होगा, जो हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो देखिए यहाँ से तो आ नहीं सकता है ना, यहाँ से ब्रिज हेड फॉर्म हो गया, तो वो यहाँ से अटैक करेगा। हेंस इट इज 2 SN2 रिएक्शंस, दो ऐसा लगेगा सिमिल्टेनियसली SN2 रिएक्शंस हो रहे हैं, विच इज लीडिंग टू रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। और रेट इतना फास्ट है इसका। एट द सेम टाइम ये है, इसका जो प्रूफ आता है एक्चुअली, रेट रिएक्शन फास्टर होने से रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन के अलावा NMR सिग्नल्स जो हैं, अगर इस किस्म का ये स्टेबल ले लिया जाए, नॉर बोर्ना डाई इनाइल, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं इसको स्टेबलाइज करने में, तो उस केस में देखा जाता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो 2 और 3 के हैं, इनका और इन दोनों हाइड्रोजन का जो सिग्नल है वो फर्क आता है। दिस इज एन एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नॉन क्लासिकल दिस टाइप ऑफ अ कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है इधर की तरफ, और ये सिस्टम, ये इसके सिन है और इसके ये क्या है, एंटी है। Here carbon double bond carbon acts as the neighboring group. ये एक्सो 2 बोर्नाइल ब्रोसिलेट, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसमें सॉल्वोलिसिस जो होती है 350 टाइम्स फास्टर देन द एंडो आइसोमर। दिस इज द एक्सो आइसोमर। और अगर ये यहाँ प्रेजेंट होता है ये ग्रुप इस पोजीशन में, तो ये इधर की तरफ जहाँ H है तो वो एंडो आइसोमर कहलाता। तो ये एक्सो आइसोमर में क्यों फास्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटेट कर रहा है रिएक्शन, वो क्या फैसिलिटेट कर रहा है, हमारे ये प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय मींस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं इसके रिमूवल को। हेंस इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इस तरह का हमारा, क्योंकि ये है सिग्मा बॉन्ड तो ये इधर आ जाएगा, तो उस केस में कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और ये सिग्मा बॉन्ड है ये इधर टूट जाएगा इसके साथ में, तो इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से तो बनता है। तो ये बॉन्ड जो है पूरा कहाँ की तरफ खिंच गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया जब ये निकला, इधर से ये निकलेगा ग्रुप, ये वाला ग्रुप, और यहाँ इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जब ये पूरा इधर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह रोटेट कर रहा है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इससे फैसिलिटेट होगा अटैक ऑफ द सॉल्वोलिसिस बाय एसिटाइलेशन CH3COH। तो ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये लग गया हमारा एसिटाइल ग्रुप, एंड दिस therefore will be formed what type of mixture in this case, रसीमिक। अब देखिए इसमें रसीमिक क्यों बन रहा है, क्योंकि जो कैटायन है एसिमेट्रिकल है, तो इसमें अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल है, ये वाली पोजीशन से भी और ये वाली पोजीशन से भी। therefore we get a racemic mixture in the case of exo 2 norbornyl ब्रोसिलेट। एक और उदाहरण है हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। देखिए ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, ये CH2 है। अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रॉ करेगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा बॉन्ड जो है, तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहे हैं, हेंस पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, या यहाँ से ना जा करके ये पूरा जो CH2 ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इनफैक्ट ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। दिस इज अगेन अ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन वेयर द सिग्मा बॉन्ड थ्रू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन by means of the sigma bond is facilitating the expulsion of the attached group over here, formation of a carbocation and stabilization of this carbocation, a non-classical carbocation cyclopropyl methyl। एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो हमने पढ़ा। ये इस केस में क्या है, देखिए ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, यहाँ पे एंटी ट्राईसाइक्लो ऑक्टेन 8 पैरा नाइट्रोबेंजोएट, ठीक है। इसका रिएक्शन जो होता है
10 to the power of 14 times faster than that A जो हमने शुरू में स्ट्रक्चर पढ़ा था उससे इतना गुना फास्ट होता है। क्या रीज़न है कि इसके जो p ऑर्बिटल हैं ये ऑर्थोगोनल होते हैं कार्बोकेटाइन के टू द पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग। अब देखिए ये है हमारी साइक्लोप्रोपाइल रिंग, यहाँ पे ये एक्ट करती है किस तरह, एज द नेबरिंग ग्रुप। तो विद द रिजल्ट ये तो इसमें से निकल आएगा, ठीक है। और कार्बोकेटाइन जो बनेगा उस केस में क्या होगा कि ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो है ये पाई बॉन्ड से भी ज़्यादा एफिशिएंट होगी। ये इसके एंटी है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर ये रिंग के साथ ये शेयर होंगे, ये या कभी ये। तो इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज विल बी ट्रांसमिटेड ओवर हियर। तो कभी ये वाला कभी ये वाला कभी ये वाला सिस्टम जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ ब्रिजिंग हो जाएगी इसके साथ। तो दिस इज नोन एज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये भी कैसे पता लगता है, क्योंकि इसका रिएक्शन रेट जो है वो इतना तीव्र गति से होता है। जो हमने शुरू में ए स्ट्रक्चर देखा था, ए कौन सा स्ट्रक्चर था, ए था हमारा 7 नॉर बॉर्निनाइल सिस्टम, तो उससे भी ज़्यादा फास्ट होता है। इसका मतलब पाई बॉन्ड से भी ज़्यादा एफिशिएंट है दिस साइक्लोप्रोपाइल रिंग इन forming this carbocation and stabilizing it. So this is all about classical and non-classical carbocation. Classical में क्या होता है, एक जगह localized होते हैं, stabilize होता है वो positive charge by means of resonance, by hyperconjugation or by presence of lone pair of electrons. We can say a heteroatom in the vicinity of the carbocation, or in other words we can also say by electron donating groups, electronic इन्फ्लुएंस। लेकिन जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन होता है उसमें हमेशा जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं ये कैसे होते हैं, थ्रू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय मींस ऑफ पाई और सिग्मा बॉन्ड विच इज नॉट प्रेजेंट इन द एलाइलिक पोजिशन टू द कैटायन, so that other position is known as homoallylic position in the case of a double bond. So thank you.